Hello, students. I once again welcome you to today's online video lecture. And today we will start a fresh chapter. In the last class, we had completed with the chapter The Third Level by Jack Finney. And today we will start with the second chapter in your book with stars, which is named as The Tiger King. It is written by Kalki. The writer Kalki was a Tamil writer, and Kalki was actually his pen name. His real name was Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. Ramaswamy Iyer was a writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. His writings include over 120 short stories, 10 novella. Novella is a short novel, okay? He also wrote 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of films and music reviews. So he was a very prolific writer, the author of this chapter, and he had written in all different types of genres and fields, okay? And he was also a historical writer, and he was also a independence activist, because he lived in during the time when there was British Raj in India, okay? On his birth centenary celebrations, a postage stamp was released in his honor, as you can see in the picture. So this was something to honor the great writer from Tamil Nadu, okay? So what was done, a postage stamp in his honor was released so that people keep on remembering him, okay? And the government of Tamil Nadu announced the nationalization of Kalki's works so that publishers can reprint his works. So the government also allowed that his works could be printed and reprinted by the publishers all around the country. This is what is nationalization of his works, okay? So that the entire country, that is India, can easily access his works and read them. The author in his lifetime received many awards, okay? And the most prominent ones were Sangeeta Kala Shikhamani Award. This was the award given to him by the Indian Fine Arts Society in 1953. Then he also received the Sahitya Academy Award in 1956 for his novel Alai Osai. This is a Tamil name, okay? And as I told you, he wrote historical and social fiction. Fiction, we all know, fiction क्या होता है? It is the imagination at work, जिसमें writer imagination से कहानी बनाता है और वो उसको characters बनाता है, story बनाता है, and then he writes it down. It is not based on any real incident, okay? And this writer wrote historical and social fiction. So his fiction, his works are based either in history, so that they give us a kind of insight into what the past has been, or he wrote social fiction. Social fiction is also very much similar to historical fiction, जो हमको बताता है कि किसी भी टाइम की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, क्या नॉर्म्स थे लोगों के बीच, कैसा लाइफस्टाइल थी, ओके? सो दिस इज व्हाट इज हिस्टोरिकल एंड सोशल फिक्शन. सोशल फिक्शन से हमको और क्या पता चलता है कि उस सोसाइटी के अच्छाइयाँ क्या थी, उस सोसाइटी के ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है? सो इट हाईलाइट्स ऑल द सोशल क्वालिटीज एज वेल एज द सोशल evils. So this writer was a very prominent writer that has been in our country, and he was very much remembered, and he is remembered even till today. So we will now move on to the story. Before we start with the story, I'll just give you
a kind of a highlight of the themes in the story. The story is about a tiger king, as the title is telling us, and that king, when he was born, it is like in this chapter it is written that when he was born, within 10 days he started to speak, and he was a very courageous man, and he the main astrologer who was there in the kingdom where he was born, that astrologer told him and the people around that he just told the fate of the child, and the astrologer was trying to kind of fool the people around, as astrologers have been doing. जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, astrology, okay, so what they do, they generally tell about those things which are very much common, which are very obvious, कि आपके साथ ये होगा वो होगा. These things are very common. वो बस बीच में कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं, क्योंकि फेट जो है अल्टीमेटली क्या होगा वो किसी को नहीं पता है. बट दीज पीपल जस्ट टू अर्न, वो अपनी क्या है कि कहानियाँ बना देते हैं. ओके, एंड पीपल जो ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं वो उन पे भरोसा कर लेते हैं. ओके, सो द एस्ट्रोलॉजर टेल्स दैट दिस किंग विल डाई. ओके, नाउ ये कैसी प्रिडिक्शन है? ऑब्वियसली हम सबको मरना है. ओके, सो the tiger king, when he was just 10 days old, he questioned the astrologer and he said, everyone knows that we are going to die. तुम हमें ये बताओ कि what is the manner of my death? मैं मरूंगा किस तरह से? Okay, so what the astrologer says, he says that you are born in the bull star. Okay, like तुम्हारी जो कुंडली है, तुम्हारा जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन है, दैट इज ऑफ अ बुल, जो जनरली हम टॉरस जो ज़ोडिएक साइन होता है उससे रिलेट करते हैं. सो यू हैव बीन बोर्न इन द बुल स्टार, एंड बुल एंड टाइगर आर एनिमीज. तो तुम किससे मारे जाओगे? यू विल बी किल्ड बाय अ टाइगर. ठीक है, तो ये जब उसको पता चलता है, सो वो क्या बोलता है दैट द टाइगर्स शुड बी वेयर ऑफ मी. सब टाइगर्स को मुझसे बच के रहना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ लिटिल चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, और वो बोल रहा है. सो इट इज अ काइंड ऑफ अनबिलीवेबल थिंग. ओके, सो एनीवेज वी हैव टू बिलीव मेनी थिंग्स व्हेन वी रीड फिक्शन, क्योंकि फिक्शन जो होता है वो इमेजिनेशन का एक फिगमेंट होता है, और उसको हमको ना चाहते हुए भी बिलीव करना है. वी हैव टू मेक बिलीव इन आवर माइंड्स कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इवन इफ इट इज something which is not really digestible to us. Okay, so the tiger king, when he grows up, उसको ये याद रहता है, and then he starts killing the tigers because जो astrologer था उसने क्या बोला था that if you kill the tigers, even if you kill 99 tigers, the 100th tiger will kill you. तो तुमको 100th जो टाइगर है उससे तुमको बच के रहना है, that will kill you. बट अल्टीमेटली वो मारता है और वो 100 टाइगर्स मार देता है. बट अल्टीमेटली सम ट्विस्ट हैपन्स इन द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड द टाइगर किंग हिमसेल्फ डाइज. ओके, बिकॉज ऑफ अ 100th टाइगर. सो ये एंड में कैसे वो मरता है वो हम एक सीक्रेट रहने देते हैं. वो वी विल अनफोल्ड दैट व्हेन वी रीड द स्टोरी. ओके, सो coming to the themes of the story, in the story we have many themes, like there is the theme of the conceit of the rich. Okay, अच्छा, themes बताने से पहले let me tell you that राइटर ने इस चैप्टर में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू हमको स्टोरी दिखाई है. ओके, सो वन लिटरेरी डिवाइस जिसके थ्रू राइटर ने अपनी बात रखी है, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी. ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? दैट ऐसी सिचुएशन होना स्टोरी में जो रीडर्स को पता है कि ऐसा हो रहा है या ये असलियत है और आने वाले टाइम में ये होगा. ठीक है, रीडर्स को ये बात पता होना और कैरेक्टर्स को ना पता होना. ठीक है, तो ये जनरली ड्रामा में यूज़ किया जाता है जहाँ ऑडियंस को पता होता है एंड ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग नाउ दिस विल हैपन, बट द कैरेक्टर ऑन द स्टेज डजंट नो. ठीक है, तो ये एक ड्रामेटिक आयरनी है जिससे बहुत हाइटेंड इंटरेस्ट हो जाता है किसी भी
प्ले का या किसी भी स्टोरी का. सो दैट हैज़ बीन यूज. इसमें हमको पता है कि जो टाइगर किंग है वो फुलिशनेस कर रहा है. ही इज़ डूइंग दिस, ही इज़ डूइंग दैट. वो ऐसे करने से अपना किंगडम ख़राब करेगा, लूज़ करेगा. पीपल जो है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो खुश नहीं है. बट द टाइगर किंग doesn't know all this. He doesn't in fact realize all this. जबकि रीडर्स ये रियलाइज़ करें. सो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमको पता होती हैं और जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता है. सो दिस इज़ ड्रामेटिक आयरनी जो एम्प्लॉय की है राइटर ने इस स्टोरी को लिखने में. इसके अलावा एक और लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ की गई है दैट इज़ ह्यूमर. ओके, दैट इज़ ह्यूमर एंड दैट इज़ सटायर. ह्यूमर इज़ मजाक, ठीक है, मजाक में कोई बात को बोलना. एंड सटायर, सटायर होता है जो हम हिंदी में कहते हैं व्यंग्य करना. ओके, सो व्यंग्य करना क्या होता है कि आप किसी के अंदर अगर कोई बुराई है या किसी के अंदर कोई ड्रॉबैक है या किसी के अंदर कोई वीकनेस है तो आप उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोल करके उस चीज़ को एक मजाकिया अंदाज में बोलते हैं, ठीक है, या उसको एक ऐसे विटी तरीके से बोलते हैं कि उस इंसान को वो बात बुरी भी ना लगे और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाए, लेकिन वो बहुत लाइट टोन में हो, बहुत लाइट मैनर में हो, सो दैट उसको बुरा भी ना लगे. सो दिस इज़ सटायर मिक्स्ड विथ ह्यूमर. ओके, एंड ड्रामेटिक आयरनी. तो ये तीन चीज़ें जो है ये एम्प्लॉय की गई हैं स्टोरी में. बहुत सारे जगहों पे हमको हंसी आती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमर दैट हैज़ बीन यूज्ड. ओके, सो थीम्स में क्या क्या हम बोल सकते हैं कि इसके चैप्टर के थीम्स में है देयर इज़ ऑब्वियसली डिसीट ऑफ द पावरफुल. कि जो रिच लोग होते हैं वो अपने जो गरीब अपने जो जनता है उनके साथ कुछ भी करते हैं. उनके जो अंदर जो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो एक कॉन्डेसेंडिंग नेचर होता है, वो जो है वो उनको बहुत सारी वो चीज़ें ऐसे करते हैं जिसको हम फूलिश कहेंगे, जैसे कि इसमें टाइगर किंग करता है. बट दैट इज़ हिज डिसीट. वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है. जो पैसे वाले लोग होते हैं दे डोंट रियली केयर. ओके, जो रियल वर्च्यूज होते हैं वो गरीबों में ही पाए जाते हैं जनरली. ओके, लोगों के पास जब पैसा आ जाता है सो देयर आईज आर ब्लाइंडेड टू रियलिटीज ऑफ लाइफ. ओके, सो देयर इज दिस डिसीट ऑफ द पावरफुल जो अपने से नीचे के लोगों पे अत्याचार करते हैं. दे डोंट केयर अबाउट देम. ओके, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, देन देयर इज अ काइंड ऑफ रूमर. इस चैप्टर में बहुत सारे रूमर्स सुनने को मिलेंगे कि जो जनरली क्या होता है कि कोई बात फैलती हुई आती है एंड दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग. जो हम माइथोलॉजीज पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से उनमें कुछ मिक्सचर होता है ट्रुथ का और कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है रूमर का, अनट्रुथ का. ओके, सो रूमर जो है जो बात लोगों के मुंह बोले सुन कर लोग फैलाते रहते हैं एंड इट गेट्स स्प्रेड ऑल अराउंड. ठीक है, एंड इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन. वो सही नहीं होता है कम्प्लीटली. ओके, समटाइम्स इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ओके, so rumors are there in the story. Then this chapter talks about greed. इसमें जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर लालच भी होती है. Okay, so this chapter shows us how the Duraisini is the wife of the of a British officer, and she is a greedy person. Even the officer is a greedy person. तो ये greed दिखती है. Even there is a hint of greed where in the way the Tiger King is trying to kill all the tigers, because he is not at all concerned about other people, his poor subjects. He is only concerned about his to get rid of his fear. उसको जो डर है कि मुझे शेर मारेगा, उसको उस फियर से दूर जाना है, उसको उस फियर को ख़त्म करना है. सो ही इज़ इंस्टेड किलिंग द टाइगर्स. सो this greed is prominent in the story. Then there is the puppet like working class. जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो नीडी पीपल होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको सबके सामने अपने जो हेड्स हैं उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, उनके सामने सबमिट करना पड़ता है. ठीक है, वाई? बिकॉज इफ़ दे डोंट डू दिस वो अपनी जॉब खो बैठेंगे, अपनी इज्जत खो बैठेंगे, अपनी फैमिली खो बैठेंगे.
ओके, एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये हमेशा से चला आ रहा है और ये आज तक चल रहा है. इवन इन आवर सोसाइटी, इवन इन आवर कल्चर, इवन इन आवर कंट्री, नेशन, वर्ल्ड, हम देख रहे हैं कि कैसे जो रिच हैं वो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं. ओके, and they are exploiting the poor, and the poor have nothing but to submit to them if they want a decent life. Okay, so this is there. उसके बाद एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो थीम है इस चैप्टर का वो है द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, हम जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम खुद को बहुत सुपीरियर क्रिएशन समझते हैं. एंड इंडीड वी आर अ सुपीरियर क्रिएशन ऑफ गॉड. सुपीरियर नहीं बोल सकते हैं हम, सबसे द राइट वर्ड इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्रिएशन, क्योंकि हम जो है हमको सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ दी गई हैं, सबसे ज़्यादा हमें सबसे अच्छी क्वालिटी दी गई है बोलने की. ह्यूमन बींग्स कैन स्पीक, दे कैन एक्सप्रेस. सो दिस डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम द बीस्ट, फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, इंसान और हैवान में क्या फ़र्क आ जाता है, एक बोली का, एक स्पीच का. ओके, सो दिस डिफरेंस बिटवीन अस डजंट मेक अस सुपीरियर इन एनी वे. हमको जो है ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ इस प्लैनेट पे अकेले रहना है. अगर एनिमल्स की ज़रूरत, अगर एनिमल्स इतने ही बेकार होते तो गॉड बनाते ही क्यों एनिमल्स को. ओके, so animals are there on the planet, there are other creatures on the planet. Why? Because they complete our life. ठीक है, वो उनके होने से हमारी लाइफ है. अगर वो नहीं होंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे. मगर इंसान जो है वो खुद को इस एटीट्यूड में रखता है दैट द एनिमल्स आर लो क्रिएचर्स, और वो उनको किसी भी तरह ट्रीट करता है. ठीक है, सो एनिमल्स पे बहुत अत्याचार होते आए हैं सिंस द वर्ल्ड has begun. ठीक है, so this attitude is shown even in this story कि किस तरह से जो टाइगर किंग है वो टाइगर्स को मारता जा रहा है. उसके एरिया में टाइगर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो किसी और स्टेट की लड़की से शादी करता है, किसी रिच लड़की से, ताकि वो वहाँ का फिर सन इन लॉ हो जाए और वो वहाँ जा के टाइगर्स मार रहे, और फिर वो वही करता है. ओके, एंड आफ्टर दैट वहाँ के भी टाइगर्स ख़त्म हो जाए. सो दिस शोज द kind of indifference of the people, of the human beings to the wild animals. Okay, क्यों wild animals की family नहीं होती है, उनको feelings नहीं होते. The only thing is that they don't speak. Okay, so this is a very important theme in the story. और ये themes में और भी add कर सकते हैं, like the India during the British राज के टाइम में इंडिया कैसे थी, हमारी कंट्री कैसी थी, इसकी सिचुएशंस कैसी थी, लोग किस तरह बिहेव करते थे. ओके, द पीपल जनरली हैड टू सबमिट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, बिकॉज इवन यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है, जो टाइगर किंग है, जो क्राउन प्रिंस है, ही हैज़ टू सबमिट some way or the other to the British officer. So it is also telling us about those times. So एक तरह से ये चैप्टर हिस्टोरिकल फिक्शन में भी काउंट हो सकता है. ओके, उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थीम ये है इस चैप्टर की, एंड दैट इज द इनविंसिबिलिटी ऑफ फेट और डेथ. इनविंसिबल होना मतलब ऐसा होना जिसको कोई हरा ना सके. ओके, सो इनविंसिबिलिटी ऑफ डेथ और फेट. डेथ तो हम सब जानते हैं, फेट क्या होता है. फेट हमारा जो डेस्टिनी जो हम कहते हैं. ओके, सो दिस इनविंसिबिलिटी जो हमारे साथ होना है, लाइक अगर हमको मरना है तो हम मरेंगे. ओके, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड जब से इंसान पैदा होता है तब से मरता है. सो एवरीथिंग दैट इज बॉर्न हैज़ टू डाई, एंड दिस इज द रूल ऑफ नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे नेचर को चैलेंज करना एक बहुत फूलिश काम होता है. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर द टाइगर किंग डजंट रियलाइज दिस. उसको बस अपनी क्या कह सकते हैं, एक विम है उसका. ठीक है, एक उसको नशा है कि मुझे 100 शेर मारने, 100 टाइगर्स मारने. सो एनी हाउ ही हैज़ टू किल देम. ओके, सो ही इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ डू अवे विद द फियर कि मुझे कोई शेर मारेगा. ठीक है, तो ये एक बहुत फुलिश एक्ट है. अगर आप इसको सोचे तो ये एक फुलिश एक्ट क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल,
एक एस्ट्रोलॉजर की ये उसने एक अंतर्यामी की तरह ये बात बोली, ठीक है। अब वो कितनी हद तक सही है कि उसको कोई शेर मारेगा, वी डोंट नो, ओके। सो दिस हमको सबसे पहले तो ये इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि हमको इन चीज़ों में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके। सो जनरली पुराने ज़मानों में क्या होता था, लोग इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे और ज़्यादातर उल्लू बन जाते थे, ओके। द एस्ट्रोलॉजर्स यूज्ड टू फूल दीज पीपल एंड एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम, ओके। एंड और क्या होता है कि जो फेट और डेथ है, ये हम किसी भी तरह से इसको बाईपास नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वन डे वी ऑल हैव टू डाई। तो वो एस्ट्रोलॉजर की बात को सुनना, ये एक फूलिशनेस। उसके बाद सेकंड फूलिशनेस ये कि अगर उसने बोल भी दिया कि वो टाइगर से मारा जाएगा, सो व्हाट इज़ देयर, लाइक उसको उसमें सब्र कर लेना चाहिए। ही शुड हैव पेशेंस दैट आई सी कि मैं कैसे मारा जाऊंगा। बट उसको ये जो फियर आ गया, दैट इज़ अनदर फूलिशनेस। फियर इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। आप जब डरने लगते हैं तो आप वीक हो जाते हैं, ओके। सो द टाइगर किंग इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस कि वो 100 टाइगर मार रहा है, वो बहुत वीक हो जाता है, बहुत उसके अंदर की वीकनेस दिख रही है, उसके अंदर का फियर जो है वो उसकी वीकनेस को दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ विच ही इज़ ट्राइंग टू do away with 100 tigers. So this is a kind of complete foolishness on the part of the tiger king. And death, वो जो जिस डेथ से भाग रहा है कि मुझे शेर ना मारे, तो हो सकता है कि उसको उससे भी ज़्यादा डेंजरस डेथ मिले, ओके। वी डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू डाई, व्हेन वी आर गोइंग टू डाई एंड वेयर वी आर गोइंग टू डाई, ठीक है। सो वी शुड जस्ट हैव पेशेंस एंड वी शुड लीव इट ऑन फेट, वी शुड लीव इट ऑन गॉड, ठीक है, कि जैसे मरना है इट्स डिसाइडेड एंड इट्स हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। बट अपने मरने के बाद को सोच के अपने लाइफ को टेंशन में डालना, अपने लाइफ में प्रेशर लेना, अपने लाइफ को ना जीना, ये कर रहा है टाइगर किंग। और ऐसा करने वाले कोई भी लोग जो होते हैं वो पीसफुली नहीं जी पाते, ओके। सो ये सब सीखने की बातें हैं इस चैप्टर से। अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ओवरऑल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और लाइफ एंड डेथ का इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया है और राइटर ने फैक्ट और फैंटेसी के हमें देखी हुई बात पे बिलीव करना चाहिए या सुनी हुई बातों पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारी सुनी हुई बातें हमको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, बट जिन पे हमको भरोसा नहीं होगा, इजीली ना करने का दिल करेगा, बिकॉज वो जो चीज़ें हैं वो हम रियल लाइफ में नहीं देखते हैं, ओके। एंड एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन द स्टोरी। एस्ट्रोलॉजी की वजह से ही पूरा चैप्टर इधर से उधर हो रहा है। एंड रूमर वर्सेस रियलिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दीज आर द important themes in the story which we will counteract once we start moving with the chapter. And so in the next video lecture what we'll do, we'll start with the text of the chapter, ठीक है। एंड तब तक आप क्या करिए, तब तक आप चैप्टर के बारे में मैंने जो भी बताया थिंक अबाउट इट, ठीक है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, कहीं ना कहीं टेक्स्ट है, सो स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। एंड द थीम्स विच आई हैव टोल्ड यू आर नॉट द ओनली थीम्स, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी अदर थीम्स you can write down in the comments and we can discuss them later on, or you can make notes on your own, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब और चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे होपफुली। सो until then, thank you and see you.